وہ بلیو جینس کے اوپر بلو ڈریس شرٹ پہنے ہوئے ہاتھوں سے بال سیٹ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلیوز ہمیشہ کی طرح کہنیوں سے تھوڑا نیچے تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ جب چلتے چلتے اچانک کسی سے ٹکر ہوئی تھی۔ اوہو، تم دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ آنکھیں کرائے پر دے کے آئے ہو کیا؟ مہنور اپنا سر مسلتے ہوئے غصے سے بولنا شروع ہوئی تو رکی ہی نہیں۔ بریک لگاؤ لڑکی، کتنا بولتی ہو؟ براق اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے بولا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے تم؟ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ تو تم دیکھ لیتی، اور یہ تم صبح صبح ہمارے گھر کیوں آئی ہو؟ مسٹر براق، پہلی بات مجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ میری بہن کا سسرال ہے اور ابھی میں ہورس کے کہنے پر آئی ہوں۔ دوسری بات، یہ صبح صبح نہیں، دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ شاید آپ کی صبح ابھی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چپا کر کہتے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے تو صبح ہی ہے نا چوٹی۔ وہ کندھے اچکائے سکون سے کھڑا تھا جب دروازے سے اندر آتی حور پر نظر گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ بھابھی کے لفظ پر زور ڈالتے شرارت سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ اندر آتے ہوئے فروٹس اور سامان ملازمہ کو دیتے ہوئے اس نے براق کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ آنٹی سے ملنے آئی تھی۔ اوہو، آ جائیں۔ براق حور کو اپنے ساتھ لے کر ریحانہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہنور نے ان دونوں کو دیکھا جو سرے سے اسے اگنور کر گئے اور پھر وہ خود بھی ان کے پیچھے ریحانہ بیگم کے کمرے کی طرف چل دی۔ کیسی ہے طبیعت آپ کی آنٹی؟ وہ دونوں ہی ریحانہ بیگم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ بس ہلکی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور چلو اچھا ہی ہے، اسی بہانے تم گھر تو آئی۔ اپنی طبیعت کا بتانے کے بعد وہ آخری میں نہ آنے کا میٹھا سا شکوہ کر گئی تھی۔ انہی باتوں کے دوران زوش بھی کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں سے ملنے کے بعد وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ دونوں ہی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ریحانہ بیگم کے اصرار کے بعد بھی وہ دونوں وہاں نہ رکی تھی۔ ریحانہ بیگم سے الوداعی کلمات کہنے کے بعد وہ دونوں زوش اور براق کے ساتھ باہر نکلی تھیں۔ حور، آپ تو رک جائیں یہاں پر۔ براق نے آپ لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے حور کو کہا اور جتاتی نظروں سے مہنور کو دیکھا، جو اس کی بات کا مطلب سمجھتے غصے سے اسے گھورنے لگی۔ چلو حور، ورنہ یہ آپ کو یہیں نہ روک لے۔ مہنور نے بھی اسی کے انداز میں آپ لفظ پر دباؤ ڈالتے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ ہاں، مجھے رکنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور پھر حور کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زوش ان دونوں سے مل کر اندر چلی گئی تھی جبکہ براق وہیں کھڑا تھا۔ ان کی گاڑی سلطان مینشن سے باہر نکلی تھی، ساتھ ہی ایک اور گاڑی سلطان مینشن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی سے شایان زیدی اپنی بیگم کے ساتھ نیچے اترے تھے جبکہ مصطفیٰ گاڑی سائڈ پر پارک کرنے لگ گیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ مسز شایان نے براق کو گلے لگاتے سر پر پیار کیا تھا۔ السلام علیکم انکل، آپ تو بڑے ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ شایان صاحب کے گلے لگتے براق نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر شایان صاحب بھی ہنستے ہوئے اس سے ملنے کے بعد اندر کی طرف چل دیے۔ رانگ ٹائمنگ ہے بھائی تمہاری۔ ایک نظر مین گیٹ سے نکلی حور کی گاڑی کو دیکھتے براق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے افسردگی سے کہا، کوئی بات نہیں، کچھ وقت کی بات ہے، پھر ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہوگی۔ اطمینان سے کہتے وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ نے روم میں داخل ہوتے سب کو اجتماعی سلام کیا تھا اور ریحانہ بیگم کی طبیعت پوچھنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ ویسے مصطفیٰ، تم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ مہتاب صاحب نے شایان صاحب کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ پر طنز کیا۔ کیا مطلب انکل؟ میں سمجھا نہیں۔ نہ سمجھی سے مہتاب صاحب کو دیکھتے اس نے مسکرا کر دریافت کیا، مطلب تم بھی اب گھر کے چکر نہیں لگاتے؟ اوہو مہتاب یار، کچھ بزنس میں بزی تھا میں، اسی لیے چکر نہیں لگا پایا۔ مصطفیٰ کے بولنے سے پہلے شایان صاحب نے مہتاب صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، بزنس تو تمہارا ہی ہے بس۔ مہتاب صاحب نے مصنوعی ناراضگی سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ اچھا بھائی، آئندہ سے آتا رہوں گا میں اپنے دوست کے گھر۔ شایان صاحب کا انداز ہار ماننے والا تھا جس پر کمرے کے سبھی نفوس ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہے تھے جو عمر کے اس پہلو میں بھی ایک دوسرے سے اکثر بچوں کی طرح ناراضگی جتاتے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد دونوں فیملیز سلطان مینشن کے لاؤنج میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے چائے کا مزہ لے رہے تھے، ساتھ میں ہلکی ہلکی خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ آگے کا کیا پلان ہے مصطفیٰ؟ مہتاب صاحب نے سامنے بیٹھے مصطفیٰ سے پوچھا جو زاویار سے باتوں میں مشغول تھا۔ ان کے سوال پوچھنے پر وہ سیدھا ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ انکل، ابھی تو ڈیڈ کے آفس جاتا ہوں، باقی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے پروفیشن کو ترجیح دوں گا، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں، لاڈ صاحب سے یہ بھی تو پوچھو کہ آفس جا کر کیا کرتا ہے؟ شایان صاحب نے طنزیہ لہجے میں مہتاب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ان کے کہنے پر مہتاب صاحب نے مصطفیٰ کو دیکھا جو سرزمین کی طرف جھکائے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ صاحبزادے آفس تو روز آتے ہیں اور پھر اپنے آفس روم میں جا کر آرام کرتے ہیں، پھر جب آرام کر کے تھک جاتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں دوبارہ آرام کرنے۔ شایان صاحب کے کہنے پر سبھی نفوس نے ہنستے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا جو خود بھی ٹھیٹ بنا ہنس رہا تھا۔ کم سے کم ڈیڈ روز آتا تو ہوں نا، مصطفیٰ نے خود کا دفاع کرنا چاہا۔ شکریہ بیٹا آپ کا جو آپ روزانہ آ کر اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں، شایان صاحب نے اپنے اکلوتے بیٹے کی بے نیازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسز شایان دونوں باپ بیٹے کی باتوں پر ہنس رہی تھی، وہ دونوں ایسے ہی تھے، ساتھ بیٹھے تو ان کی نوک جھونک ختم نہ ہوتی تھی۔ کل تیار رہنا، ہم تینوں مارکیٹ جائیں گے، مصطفیٰ نے اپنے ساتھ بیٹھے براق اور زاویار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ پرسوں میرا نکاح ہے۔ مصطفیٰ نے ان دونوں کو اپنے نکاح کی تاریخ یاد دلائی۔ تو
दोनों ने एक ज़बान सवाल पूछा और मुस्तफ़ा उन दोनों भाइयों की शान बेनियाज़ी पर अश-अश कर उठा। तो कल हम मार्केट जा रहे हैं मेरे निकाह की शॉपिंग करने। मुस्तफ़ा ने हुक्मराना अंदाज में दोनों को कहा। मेरे पास कल टाइम नहीं है और मेरे साथ जाने के लिए तुम्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। बुराक सोफे से पुश्त लगाते बेनियाज़ी से कहा। कमीनों, मैं तुम दोनों से पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने दोनों के गले में बाजू डालते हुए जोर दिया था, जिस पर वह दोनों कह लगाते हुए सीधे होकर बैठे थे। इसी तरह हल्की फुल्की बातों के बाद शायान साहब की फैमिली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। लंच करने के बाद वह काफ़ी देर नीचे ही बैठी रेहाना बेगम और आयशा से बातें कर रही थी और फिर अपने कमरे का रुख लेते हुए कमरे में आई, जहां वह सोफे पर बैठे सामने रखे लैपटॉप में कुछ करने में मसरूफ था। वह खामोशी से आकर सामने बेड पर बैठी थी, नजरें उस पर थी जो चेहरे पर संजीदगी सजाए लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। उसने एक नज़र सामने बैठी जविश को देखा जो अपनी हथेलियों को देख रही थी। कोई बात करनी है? हाँ। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। लैपटॉप साइड पर रखते वह पूरा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने अम्मी के घर जाना है। शादी के बाद वह आज पहली बार अपनी अम्मी के घर जाने का कह रही थी, वरना उससे पहले उसने कभी वहां जाने की कोई ख्वाहिश न की थी। फिर वापस कब आओगी? जावियान ने उससे पूछा। हूर के निकाह के बाद। अभी जाना है। उसने फिर सवाल पूछा, जिस पर मुकाबिल ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम पैकिंग कर लो, तब तक मैं यह काम खत्म कर लूँ, फिर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसके कहने पर वह उठकर अपनी तैयारी करने लगी और जाविया ने दोबारा नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमा दी। तुम अंदर नहीं आओगे? घर के सामने गाड़ी रुकने के बाद उसने ज़ावियार की तरफ देखा। मैं अंदर चलो। गाड़ी से उतरने के बाद उसने ज़बिश की तरफ दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर आने का कहा। अंदर जाने से पहले उसने घर को देखा। आखिरी बार वह इस घर में एक अनजान शख्स बनकर आया था, जो सिर्फ इस घर की बेटी को बाहिफाज़त घर छोड़ने आया था। और अब वह इस घर का दामाद बनकर आया था। जहाँ उसे इस सोच से खुशी हुई थी, वहीं उसे हालात का सोचते दुःख भी हुआ था। घर में दाखिली दरवाजे पर हूर से मिलने के बाद वह दोनों अंदर गए, जहां हाजरा बेगम से वह दोनों मिले थे। बाबा कहाँ हैं? हाजरा बेगम के बताने पर वह दोनों ही कमरे की तरफ बढ़े बढ़े थे। सामने बैठे अहमद साहब को देखकर वह खुशी और जोश से उनकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन साथ में बैठे सायम को देखकर उसकी खुशी मध्यम पड़ी थी। आ गई मेरी बेटी? अहमद साहब ने भरपूर मोहब्बत से उसे गले लगाया और उसके बाद जावियार भी उसी एहतराम के साथ उनसे मिला था। कैसी है गुड़िया? जैन ने उसके सर पर हाथ फेरा था। हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक। खुशी से उसको जवाब देने के बाद इशारे से ही उसने सायम को सलाम किया और फिर वहीं अहमद साहब के साथ बैठ गई। जाविया ने सामने बैठे सायम को देखा, जो जबिश को देखने में मसरूफ था, और फिर एक गहरी सांस लेते उसने रुख फेर लिया। उसे वह रात याद आ गई थी जब जबिश उसके जाने के बाद उसकी वजह से रोई थी। एक पल को उसका दिल किया था कि वह जबिश को अपने साथ वापस ले जाए, लेकिन फिर हूर के निकाह को सोचते वह खामोशी से जबिश को देखने लगा, जो अहमद साहब से हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसकी क्या जरूरत थी? मैं बस निकलने वाला ही था। साविया ने माहिनूर से कहा, जो हाथ में चाय और लवाजमात से भरी ट्रे लेकर आ रही थी। क्यों नहीं जरूरत? आखिर मेरे जीजा जी पहली बार हमारे घर आए हैं। माहिनूर ने ट्रे उसके सामने रखी थी। आंटी, उसकी जरूरत नहीं थी। मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ जिसे आप ये सब पेश कर रही हैं। दरवाजे से अंदर आती हाजरा बेगम को देखते हुए उसने कहा, जिस पर हाजरा बेगम मुस्कुराते हुए आ बैठी थी। मेहमान तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा, हाजरा बेगम ने हुक्मराना अंदाज में कहा, जिस पर वह हार मानते हुए चाय पीने लगा। चलिए अंकल आंटी, इजाजत दे मुझे। चाय पीने के बाद जाविया ने उठते हुए दोनों से इजाजत लेनी चाहिए। अरे बैठो बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? अहमद साहब ने उसे रोकना चाहा था। वह अंकल, मुस्तफ़ा के साथ जाना है मार्केट, तो बस इसीलिए, वरना जरूर रुकता। माजरत खाना अंदाज में कहते वह उन दोनों से मिला और फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। सविश, जाओ बाहर तक छोड़ आओ। हाजरा बेगम ने साथ बैठी जविश को धीमे लहजे में कहा, जिस पर वह सर इस बात में हिलाती जावियार के पीछे चल दी। अल्लाह हाफिज। बाहर आते उसने जावियार की पुश्त को देखते हुए कहा, जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जविश की आवाज पर पलटा और वापस उसकी तरफ आया। जविश, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, कोशिश करना उनको बाहर न आने देना, क्योंकि ये इतने सस्ते नहीं है कि किसी के लिए भी भाए जाए। उसके दोनों हाथों को थामते वह ठहर ठहर कर बोल रहा था, लेकिन उसकी कही बात का मतलब वह अच्छे से समझ चुकी थी। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। मद्दम मुस्कुराहट के साथ वह उसे कहते गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जविश वहीं खड़ी उसको जाते हुए देख रही थी। क्यों था वह ऐसा, जिसको उसके आंसू से इतना फर्क पड़ता था? और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वापस अंदर की तरफ बढ़ने लगी, जब सामने खड़े नफूस को देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तुम खुश हो उसके साथ? वह अंदर की तरफ बढ़ रही थी जब साइम के सवाल पर वह रुकी थी। मेरी खुशी के बारे में सवाल तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। वह तंजिया हंसी थी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसने सवाल किया था, जिस पर वह चलते हुए ऐन उसके मुकाबिल आकर खड़ी हुई थी। नाराज़गी बहुत कीमती चीज़ है, हर किसी पर नहीं लुटाई जाती, और मेरा नहीं ख़्याल कि तुम्हारा और मेरा कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी बिना पर मैं तुमसे नाराज़ हूँ। उसका लहज़ा बेतासुर था और एक लम्हे में सायम को किसी कह गई थी। ज़विश, सॉरी, लेकिन उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करता, सिचुएशन ही ऐसी थी, वरना तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अभी वह बोल रहा था जब ज़विश के तंज़िया लहजे में हँसने पर रुक के उसे देखने लगा, जैसे उसके हँसने की वजह पूछ रहा हो। मिस्टर सायम सिद्दीक, जो आपने की थी वो मोहब्बत नहीं थी।
क्योंकि मर्द कभी भी अपनी पसंदीदा औरत को किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता। उसकी कही बात पर सायम को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। ज़विश, तुम जानती हो उस वक़्त क्या हालात थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था, उस वक़्त मैं मजबूर था। मर्द के हाथ में इतनी गिरफ्त तो होनी चाहिए कि वह अपनी पसंदीदा औरत का हाथ थामकर दुनिया के सामने ले जा सके। और सारी बात इंसान के खुलूस की होती है, वरना कोई भी कानों का इतना कच्चा और आँखों का इतना अंधा नहीं होता कि सच को देख और सुन न सके। लहजे में छुपा तंज़ मुक़ाबिल अच्छे से समझ चुका था। और फांसी के मुजरिम को भी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने का हक होता है, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और अभी इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी सोचने का मौका नहीं दूंगी कि क्यों छोड़ा, और न ही मैं खुद को हमदर्दी के काबिल समझती हूँ। मैं वह करूंगी कि तुम्हें सारी जिंदगी पछतावा होगा कि मैंने बेवफाई क्यों की। वह जो कब से भरी बैठी थी आज सब बोलने का इरादा रख रही थी। जविश, क्या तुम वापस नहीं लौट सकती? सायम के पूछने पर जविश के माथे पर बल पड़े थे। वह कैसे उसकी मोहब्बत को रुस्वा करने के बाद अब लौटने का कह सकता था। तुमने अपनी बेअदबारी और अपनी ज़बान की वजह से मुझे खोया था, और यह बात तुम्हारी अना कभी तस्लीम नहीं करती, और अब ठोकर लगने के बाद तुम दोबारा आए हो। लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से उतार चुकी हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालते उसने सपाट लहजे में जवाब दिया था। प्लीज़। उसने एक आखिरी उम्मीद के साथ उसके चेहरे को देखते इल्तिजा की थी। वह इंसान बहुत बेवकूफ़ होता है जो एक ही पत्थर से दोबारा ठोकर खाए। और मैं एक बार आजमाए हुए शख्स को दोबारा मौका नहीं देती, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वह दोबारा भी दे सकता है। हालात बदल सकते हैं, फितरत नहीं। दो टोक लहजे में अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वह अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वह एक लंबी सांस भर के वहीं खड़ा उसकी पुश्त को देख रहा था। मैं क्यों भूल गया था कि वह जविश शाह है। वह खुद से की गई बेवफाई की माफ़ी नहीं देती, और अपनी इज्जत नफ्स के लिए दुनिया की हर मोहब्बत को ठोकर मार सकती है। बेबसी से सोचते वह वहीं खड़ा रहा। ज़ावियर मॉल के एंट्रेंस पर था जब मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल सामने किया जहाँ मुस्तफ़ा का नाम जगमगा रहा था। कॉल उठाते उसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो, कहाँ है तू? हम दोनों कब से तेरा वेट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा की चलती ज़बान पर उसने मोबाइल कान से दूर किया, और जब सामने से खामोशी इख्तियार हुई तब उसने दोबारा मोबाइल कान से लगाया। कहाँ पर है तू? मैं एंट्रेंस पर हूँ। तो वहीं रुक, हम वहाँ आते हैं। मुस्तफ़ा के कहने पर कॉल काट के दोनों हाथ जेब में डालते यहाँ वहाँ देखने लगा। जब कुछ मिनट बाद वह दोनों सामने से चलते हुए आ रहे थे। कहाँ रह गया था यार? मुस्तफ़ा ने आते समय दोबारा सवाल किया। कितने सवाल करता है यार? चल शॉपिंग करते हैं। वह उसके सवाल को सिरे से इग्नोर किए उसको लेकर आगे बढ़ गया। यार, तू पिछले आधे घंटे से अलग-अलग शॉप पर घूम चुका है, लेकिन तुझे कोई सूट पसंद नहीं आ रहा। ज़ावियार ने बेज़ारी से उसे कहा, जो हर सूट को देखने के बाद रिजेक्ट कर रहा था। यार, पहली बार मेरी शादी हो रही है, इसलिए मैं एक परफेक्ट सूट की तलाश में हूँ। कपड़ों को देखते ही मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। सबकी ही पहली बार होती है, तो कोई अनोखा तो नहीं है। ज़ावियार ने उसकी बेतुकी बात पर उसे हकीकत बताई। ये वाला सूट बेस्ट है। बुराक ने एक हैंग किए हुए सूट को देखते हाथ थोड़ी पर रखे कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर वह दोनों ही उस सूट की तरफ देखने लगे। हाँ, सूट तो वाक़ई प्यारा लग रहा है। मुस्तफ़ा ने सूट को देखते हुए तारीफ़ की थी। आखिर पसंद किसकी है? बुराक ने शौक अंदाज़ में कहा, जिस पर मुस्तफ़ा ने उसे नीचे से ऊपर तक देखने के बाद नज़रें घुमाकर ज़ावियार को देखा, जैसे उससे सूट के बारे में पूछ रहा हो। हाँ, अच्छा लग रहा है, तेरी शक्ल पर सूट करेगा। ज़ावियार ने उसके देखने पर सरसरी-सा जवाब दिया था, और फिर मुस्तफ़ा सूट की पेमेंट करवाने काउंटर की तरफ चला गया। वेल डन, वरना मुझे तो लगा था कि आज रात इसी मॉल में गुज़ारनी पड़ेगी। ज़ावियार ने बुराक का कंधा थपथपाते हुए कहा, जिसने मुस्तफ़ा के लिए कपड़े पसंद किए थे, और बुराक अपनी तारीफ़ पर मुअद्दबाना अंदाज़ में झुका था। बाकी सामान वह पहले ही ले चुके थे। सूट की पेमेंट करवाने के बाद वह तीनों घर की तरफ रवाना हो गए थे। डिनर करने के बाद वह काफ़ी देर हाजरा बेगम और अहमद साहब के साथ बैठी रही, और फिर उनको आराम करने का कहते हुए अपने रूम में आ गई थी। और इस वक्त वह खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में ढीली सी शॉर्ट और ट्राउज़र पहने बालकनी में रखे झूले पर बैठी थी। बालों का रफ सा जूड़ा बना रखा था। हमेशा की तरह अपनी सोचों में बैठी वह आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी। दिमाग में शाम में की गई अपनी और सायम की गुफ्तगू चल रही थी, जब अचानक फोन पर बजती बेल ने उसकी खामोशी को तोड़ा था। कॉल उठाते ही उसने फोन कान से लगाया था। हेलो, कैसी हो? बालकनी की रेलिंग पर एक तरफ हाथ रखे जाविया ने सवाल किया था। जैसी शाम में थी। क्या कर रही थी? एक और सवाल किया गया। कुछ नहीं, बैठी हुई थी। तुमने कॉल की, खैरियत? हाँ, बस तुम्हारी तबीयत का पूछने के लिए कॉल की थी। फिक्र नहीं करो, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं कि बात-बात पर आँसू बहाऊँ। उसकी बात का मतलब समझते हुए ज़विश ने मद्धम मुस्कुराहट से जवाब दिया था। फिर तो बहुत अच्छी बात है, औरत को मज़बूत ही रहना चाहिए। ज़विश ने बस इतना ही कहने पर इक्तफ़ा किया। चलो कल मिलते हैं। कल तक अपना ध्यान रखना। अलविदाई कलमात कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया, और एक नज़र फ़ोन पर डालकर दोबारा आसमान को देखने में महू हो गई। जबकि दावियार उससे बात करने के बाद काफ़ी मुतमईन था। वह जो शाम में साइम को देखने के बाद पिछली मुलाकात का सोचते हुए टेंशन में था, अब ज़विश से बात करने के बाद काफ़ी हद तक पुरसुकून था।
वो रेलिंग से अंदर जाने लगा जब मुस्तफ़ा की कॉल देखकर रुका और उसकी बात सुनने के बाद सर नफ़े में हिलाते कमरे की तरफ बढ़ गया। हूर ने भाप उड़ाती चाय ज़विश के सामने की, जिस पर ज़विश के चेहरे पर खुशी छा गई। शुक्रिया यार, मुझे इस वक्त इसकी बहुत तलब हो रही थी। हाँ, मुझे पता है, मेरे घर में एक चाय की दीवानी है जिसका पसंदीदा मशगला है चांद को देखते हुए चाय पीना। हूर भी अपनी चाय लिए उसके सामने बैठ गई थी। कैसा फ़ील हो रहा है आज? आखिरी रात है जब तुम हुरिया अहमद हो, कल से तुम हुरिया मुस्तफ़ा कहलाओगी। ज़विश ने अपना कंधा उसे मारते शरारत भरे लहजे में कहा। पता नहीं, अजीब-सी फ़ीलिंग है। एक नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, नए लोग होंगे। तुम फ़िक्र नहीं करो, मुस्तफ़ा भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, आखिर तुमसे मोहब्बत करते हैं। आखिर में एक आँख दबाते उसने उसे तंग किया जिस पर वह झीप-सी गई थी और हल्की-सी चपट ज़विश के सर पर लगाई थी। और तुम? तुम खुश हो? हूर ने ज़विश को देखते हुए पूछा। खुशी का तो नहीं पता लेकिन मुतमईन हूँ मैं। एक सर्द सांस लेते उसने आसमान को देखते जवाब दिया था। हूर, मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मैंने सब्र करना सीख लिया है। जिंदगी सब्र करने का नाम है। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, और जो मांगा वह न मिला तो सब्र। सब्र करने से और कुछ हो ना हो आप खुदा के करीब हो जाते हैं और मुतमईन ज़रूर हो जाते हैं। सही कह रही हो। कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा होता है अगर समझ ना आए तो सब्र कर लेना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन समझ आ जाए। कभी-कभी बातें वक़्त के साथ समझ आती हैं और वक़्त सारे राज़ खोल देता है। हूर ने उसकी बात में हामी भरते हुए सुकून भरे लहजे में कहा, हम यादों को भुला क्यों नहीं पाते? ज़विश ने उसे देखते हुए सवाल किया था। वह फिर से अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्नों में लौट गई थी जिसका आखिरी बाब तकलीफ़देह था। क्योंकि हम इंसान अकेले में बेवजह ही बैठ के अपने पुराने ज़ख्मों को याद करने लगते हैं। यह देखने के लिए कि क्या ज़ख्म भर गया या यह देखने के लिए कि क्या दिल अब भी कुछ महसूस करता है। हम इंसान यादों को भुलाना ही नहीं चाहते, इसलिए भूल नहीं पाते हर ज़ख्म भर जाने के बावजूद, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाने के बावजूद। अपनी बात का जवाब मिलने पर कुछ सोचते हुए वह दोबारा चाँद को देखने लगी थी। क्या तुम अब भी उसे याद करती हो? नहीं, यादें जानलेवा होती हैं, इसलिए मैं ज़िंदगी के उस बाब को नहीं याद करती जिससे तकलीफ़ मिले। बस एक ख्वाहिश थी उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने की, वह भी तब जब तक वह मेरे साथ था। मैं उसकी दी गई तकलीफ़ को बहुत मोहब्बत समझती थी। खुद के हालत पर हँसते हुए वो बोली थी, जब वह खुदा तुम्हें किसी के ज़रिए तकलीफ़ देकर पीछे हटाता है तो फिर क्यों उस इंसान को खुद पर मुसल्लत करना? हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है। अगर तुम्हें वो मोहब्बत नहीं मिली जिसका इंतख़ाब तुमने खुद किया था, तो उस पर यकीन रखो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। बेशक उस खुदा के फैसले बेहतरीन होते हैं। होर के इस तरह कहने पर ज़विश के दिमाग में ज़ावियार का चेहरा लहराया। वह वाक़ई एक बेहतरीन इंसान था, एक बेहतरीन हमसफ़र। जैसे हमसफ़र की ख़्वाहिश हर औरत करती है, लेकिन वह अब दोबारा भरोसा नहीं करना चाहती थी। मेरी बहन, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि कल का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल दिन है और थकावट भी होगी, इसलिए अभी सो जाओ। ज़विश ने यादों के शोर से खुद को निकालने के लिए उसे कहा, जिस पर हूर उसके गाल थपथपाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। और उसके जाने के बाद ज़विश भी सोने के गर्ज से अंदर का रुख लेती है। यह मंज़र टनल के आगे निकलती हुई एक कुशादा सड़क का, जहाँ दूर-दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही और लोगों का एक हुजूम इस वक्त यहाँ जमा है क्योंकि आज यहाँ एक बड़े पैमाने पर बाइक रेस लगाई जाएगी। तो गाइस, चलें लोगों से इस रेस के मुताल्लिक सवाल करते हैं। हुजूम में खड़ा एक शख्स हाथ में मोबाइल पकड़े ज़ोर-ज़ोर से बोलते हुए दूसरे के पास जाता है। भाई, कैसा फ़ील हो रहा है आपको और क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ कह नहीं सकते इस रेस के बारे में, लेकिन जहाँ नील हो वहाँ कोई और नहीं जीत सकता। लेकिन नील अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। दूसरा लड़का उसको जवाब देने के बाद दोबारा हुजूम की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। क्या लगता है भाई, आज आपकी रेस है और मुकाबिल अभी तक पहुंचा ही नहीं है। वह लड़का अब मोबाइल का कैमरा शाहज़ैन की तरफ किए पूछता है। शाहज़ैन एक जाना माना बाइक रेसर है जिसने बहुत सारी रेस न सिर्फ की बल्कि जीती भी है और आज वह पहली बार नील से रेस करने जा रहा था। शाहज़ैन, मलिक के आगे कोई नहीं टिक सकता, तो यह नील क्या चीज़ है? लगता है रेस करने से पहले ही डर गया। शाहज़ैन उसको जवाब देने के बाद अपने साथियों से ताली मार के मजाक उड़ाने लगा जब टनल में बाइक्स की जोरदार आवाज़ गूंजती है। लोगों का सारा हुजूम उस तरफ मुतवज्जा हो जाता है जहाँ वह आवाज़ अब करीब आते-आते तेज़ हो रही थी। और कुछ वक़्त बाद 3 बाइक सवार एक साथ हेलमेट पहने हुए एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वह तीनों ही बड़ी महारत से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कई लड़कियां उन तीनों शहजादों को देखकर ही आहें भरती हैं और उनके आते ही पूरे हुजूम में नील की नाम की आवाज़ें गूंजती हैं और वह बिना किसी बात पर ध्यान दिए स्टार्टिंग लाइन पर जाकर खड़ा हो जाता है। और बाकी दोनों बाइक साइड पर रोकी उससे उतरकर बाइक से पुश्त लगाए खड़े हो जाते हैं। शाहज़ैन की हंसी तो नील को देखकर ही सिमट जाती है। वह एक नज़र उसे देखता है जो स्टार्टिंग लाइन पर बाइक रोके खड़ा अपने हाथों को सीधा कर रहा होता है और फिर अपनी गर्दन को दाएं-बाएं झटकाता है। वह उसी के पास जाकर लाइन पर खड़ा हो जाता है। वैसे तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम हारने से बच सकते हो। शाहज़ैन के कहने के बाद नील एक नज़र उसे देखता है। तुम्हें रेस के स्टार्ट होने से पहले ही डर लग रहा है क्या?
कहने के बाद वो अपनी पोजीशन संभाल लेता है। शाहज़ैन एक नागवार नज़र उस पर डालने के बाद सामने देखता है। रेस स्टार्ट होते ही दोनों बाइक सवार हुजूम की नज़रों से गायब हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद शाहज़ैन एक नज़र इर्द-गिर्द देखता है, जहाँ उसे नील कहीं नज़र नहीं आता। वह तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बाइक की रेस तेज़ करता आगे बढ़ता है। दूर उसे फिनिशिंग लाइन नज़र आती है और लोगों का एक हुजूम। वह फ़ातिह मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ता है, जब अचानक अपने पास किसी बाइक रेस की आवाज़ सुनते हुए वह अपनी दाईं तरफ देखता है, जहाँ से नील अपनी बाइक जन से भगा ले जाता है। और अपने दोनों हाथ खुली हवा में खोले वह फिनिशिंग लाइन हमेशा की तरह क्रॉस कर जाता है। शाहज़ैन की आंखें हैरत से खुली होती हैं। अब वह नील को देखता है, जो अपने दोनों साथियों के साथ बाइक के पास खड़ा होता है। शाहज़ैन को अपना हारना बहुत नागवार गुजरता है। एक कहर आलूद नज़र वह नील पर डालता है और फिर वहां से खामोशी से निकल जाता है। नील, यू नो यू आर वेरी हॉट। नील अपने पास से आई एक लड़की की आवाज़ पर पलटकर उसे देखता है, जो जींस और शॉर्ट शर्ट में खुले बालों के साथ खड़ी नील की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही होती है। इतनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, कोई भी फिदा हो सकता है। उसके एक और जुमले पर वह उसे सर्द निगाहों से देखता है। आंखों में ढेरों नागवारे लिए वह खड़ी लड़की भी डर जाती है और वह उसे बिना कुछ कहे बाइक सन से भगा ले जाता है। सुबह मामूल से हटकर आज खुशगवार थी। हर सो बिखरी सूरज की किरणें झुककर कराची शहर को बुलंद इमारतों को सलाम कर रही थी। जनवरी का इख्तिताम चल रहा था। मौसम ठंडा होने की वजह से सूरज की किरणें अच्छी महसूस हो रही थी। ऐसे में हर जगह मेहमानों की गहमा-गहमी थी। हर तरफ लोगों की हंसी और मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। फंक्शन एक खुले मैदान में किया गया था, जिसके बीचों बीच में स्टेज बनाकर वहां दूल्हा दुल्हन को बैठाने की जगह बनाई गई थी। बाकी पूरे मैदान को सफेद फूलों से सजाया गया था। फंक्शन में मर्दों के नाम पर सुल्तान फैमिली और शाह फैमिली के आदमी थे। बाकी तमाम औरतों को बुलाया गया था। मुस्तफ़ा अपनी पूरी तैयारी के साथ जाली की बनी दीवार के इस पार बैठा हुआ था और उसी के साथ ज़ावियार सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ स्याह शॉल पहने, बालों को नफासत से सजाए, हाथ में घड़ी और अपनी रिंग पहने खड़ा कई लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करवा चुका था। वह बाकी सब लड़कियों की सताइश भरी नज़रों को नज़रअंदाज किए अपनी बीवी के इंतज़ार में यहाँ-वहाँ नज़रें घुमा रहा था। हुरिया को जालीदार पर्दे के उस पार मुस्तफ़ा के सामने बैठाया गया। ऑफ वाइट कामदार दुपट्टे के ऊपर सुर्ख जालीनुमा दुपट्टा पहने वह सर झुकाए बैठी थी। एक नज़र उठाकर उसने सामने बैठे मुस्तफ़ा को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसके इस तरह देखने पर वह दोबारा नज़रें झुका गई। ज़ावियार अपने इर्द-गिर्द नज़रें दौड़ाए अपने अनतुल हयात को देखने की कोशिश में लगा होता है। जब नज़रें सामने जाती हैं और पलटना भूल जाती हैं, जहाँ वह सफ़ेद पाँव को छूती फ्रॉक के साथ ब्राउन लंबे बालों को पुश्त पर खुले हल्के से मेकअप के साथ अपने दुपट्टे के साथ झुंझलाती हुई आ रही होती है। ज़ावियार मबहूत सा उसे ही देख रहा होता है, जिसके चेहरे पर झुंझलाहट वाज़ेह होती है। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते वह नज़रें उठाकर उसे देखती है। अपनी झुंझलाहट को भूले वह उसका भरपूर जायज़ा लेती है। वह आज उसे पहली बार शलवार कमीज़ में इतने गौर से देख रही होती है। नज़रें थी कि पलटने का नाम नहीं ले रही थी। शलवार कमीज़ के ऊपर की गई शॉल और फिर गज़ब उसकी नीली मुस्कुराती आँखें। कौन था जो उस वक़्त उस पर से नज़रें हटा सकता था? वह दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहती आगे बढ़ती हुई उसके पास आ खड़ी होती है। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। काज़ी के कलमात पढ़ने के बाद लड़की की रज़ामंदी चाही, जिस पर हुरिया कुछ पल रुकी और फिर इकरार किया और यह 2 बोल सुनने के बाद मुस्तफ़ा ज़ैदी के रगों में खून के साथ सुकून और सरशारी की लहर दौड़ने लगी। लड़की की रज़ामंदी के बाद उससे साइन करवाए गए और फिर यही रस्म लड़के की तरफ की गई और लड़के से साइन करवाने के बाद हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों के बीच से पर्दा हटाया गया। मुस्तफ़ा धीरे से चलते हुए पर्दे के उस पार गया और हुरिया के चेहरे से सुर्ख घूंघट हटाया। घूंघट हटाते ही नज़रें उसकी झुकी हुई आंखों पर गईं और फिर पूरे हक के साथ उसने उसके माथे पर बोसा दिया। आपने मुझे जीत लिया मिसेस मुस्तफ़ा ज़ैदी। उसके कान में सरगोशी करते वह पीछे को हुआ और उसी सरगोशी के साथ हुरिया के गाल सुर्ख हो चुके थे और झुकी नज़रें और झुक गईं। दोनों दुल्हा-दुल्हन को एक साथ सोफे पर बैठाया गया था। रुखसती होने में कुछ वक़्त था। मुस्तफ़ा के साथ स्टेज पर ज़ावियार और बुराक दोनों खड़े थे और उसी वक़्त मुस्तफ़ा की नज़र सामने से आती मायनूर और ज़बिश पर पड़ी। उन दोनों के मुस्कुराकर स्टेज की तरफ बढ़ता देख बुराक ने अपने दोनों हाथ मुस्तफ़ा के कंधों पर रख कर तसल्ली दी और साथ में उमड़ने वाले कहकहों को भी रोकना चाहा, जो कि नामुमकिन था। चलिए मुस्तफ़ा भाई, पैसे निकालिए। माहिनूर के कहने पर बुराक ने उसे देखा, जो कि शॉकिंग पिंक पांव तक छूती फ्रॉक के साथ भारी कामदार दुपट्टा किए हुए थी। बालों का डिजाइन बनाए पीछे की हुई थी, लेकिन आंखें से कुछ आवारा लटे चेहरे का तवाफ कर रही थी। ये कौन सा तरीका है भाई मांगने का? बुराक और माहिनूर को तंग न करे ऐसा हो सकता है? तुम चुप करो, तुम्हारी शादी थोड़ी है। तुमसे नहीं मांगे, मुस्तफ़ा भाई से मांगे हैं। अच्छा बताओ, मेरी दोनों गुड़िया को कितने पैसे चाहिए? मुस्तफ़ा ने अपने सामने बैठी माहिनूर और जबिश दोनों से पूछा, जिस पर माहिनूर झट से बोली, 1 लाख। बस? नहीं नहीं, इतने कम बोलने की क्या जरूरत थी? तुम कहो तो मुस्तफा अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करवा दे। बुराक के इस तरह कहने पर जहां बाकी सबकी हंसी गुजी, वहीं मायनूर ने एक जबरदस्त घूरी से उसे नवाजा, जिसका बुराक पर तो कोई असर नहीं हुआ। जविश, तुम्हें भी 1 लाख ही चाहिए क्या? मुस्तफा ने जविश से पूछा, जिस पर उसने पूरी जोर शोर से सर असबाब में हिलाया
और इसके इस अंदाज पर जावियर ने अपनी जेब से 1 लाख निकाल कर जविश के सर पर से घुमाने लगा, जिस पर जविश आंखें फैलाए उसे ही देख रही थी, जो किसी का भी लिहाज किए बिना सिर्फ उसकी जात में गुम था। तजब्जुब का शिकार होती उसने इर्द गिर्द देखा, जहां स्टेज पर बैठी सारी यंग जनरेशन उन दोनों को देखते हुए अपनी हंसी छिपा रहे थे। बाकी तमाम लोग स्टेज से दूर आपस के मेहमानों में लगे हुए थे। इस बात पर जविश ने एक सुख का सांस लिया। उस पर से तमाम पैसे फेरने के बाद जावियर ने उसके सर का सदका दिया। वह लम्हे भर के लिए उसकी नीली मुस्कुराती आंखों को देखकर तजुब्जुब का शिकार हुई थी, जो अब आराम से सोफे पर बैठा उसे निहारने में मसरूफ था। एक लड़की है जो अब मोहब्बत को मानती नहीं, और एक शहजादा आया है उसकी जिंदगी में, जो उस पर अपनी सारी सल्तनत लुटाने को तैयार बैठा है। पैसे लेने के बाद महनूर उन पैसों को हाथ में लिए बुराक के सामने झल्लाती खुद को हवा दे रही थी, और उसकी इस हरकत पर वो सनफे में हिलाते मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गया। रुखसती का वक्त हो चुका था, और बारात के आते ही रुखसती भी हो चुकी थी। और हुरिया इस वक्त अपने पूरे हक के साथ मुस्तफ़ा सैदी के बेड पर बैठी थी। दरवाज़ा खोलते ही वह अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सामने हुरिया को बैठे देख वह चलते हुए उसके सामने आ बैठा। वह उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए प्यार से उन्हें देखने लगा, फिर नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखा, जो हैरत से उसे ही देख रही थी। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे मेरी ज़िंदगी का ख़ास तोहफ़ा देने के लिए, खुद को मेरे साथ जोड़ने के लिए। वह उसका हाथ पकड़े मोहब्बत से कह रहा था, जबकि वह दम खुद से उसे सुन रही थी। और उसके ज़हन में फार्म हाउस में बैठी एक याद गुजरी। वो उसे देखते हुए यही सोच रही थी कि सामने बैठे शख्स को उससे कब और क्यों मोहब्बत हुई। आपको मुझसे कब मोहब्बत हुई थी? वह सुन सी बैठी उससे यह सवाल कर गई थी, जिस पर वह मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। पता नहीं कब हुई, ज़ावियार की शादी पर देखा तो दिल को अच्छी लगी थी। उसके बाद वह पसंद कब मोहब्बत में बदली पता नहीं चला। फिर फार्म हाउस से आने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब आप चाहिए हो अपनी शरीके हयात की सूरत में। अच्छा चलो मेरा गिफ्ट दो अब। वह दोनों हथेलियां उसके सामने फैलाए बैठी होती है, जिस पर वह अपने साइड टेबल से एक फाइल उठाकर उसके हाथों पर रखता है। वह नासमझी से फाइल को देखती है और फिर मुस्तफ़ा को। मैम, ये आपके ऑफिस की फाइल है, और ये आपके खादिम की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। फर्माबरदारी से वह उसे कहता है, जिस पर वह फाइल खोले अंदर देखती है। यह मेरा ऑफिस है? वह बेयकीनी और खुशी की मिली-जुली कैफियत में उससे पूछती है। यस मैम, यह आपका ऑफिस है, और आज से आप उसकी मालकिन हैं। कहने के बाद वह उसे देखता है, जिसकी आंखों में नमी होती है। यार क्या हुआ है, पसंद नहीं आया क्या गिफ्ट? या लोकेशन पसंद नहीं आई ऑफिस की? उसकी आंखों में आंसू देखकर घबराते हुए वह उससे वजह दरियाफ्त करता है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाती है और मुस्तफा से आ लगती है। उसके इस तरह अचानक गले लगने पर एक सुकून सी लंबी सांस खारिज करने के बाद वह उसके बालों में हाथ फेरता है। शुक्रिया। आपको पता था क्या मेरे इस ख्वाब के बारे में? वह उसी तरह उससे लगे हुए ही सवाल पूछती है, जिस पर वह कहता है। उसके इस तरह कहने के बाद वह नरमी से उससे पीछे होती है, और उसकी आंखों में देखती है, जहाँ खुद के लिए मोहब्बत देखकर उसे खुशी होती है। उसका शरीक हयात उसकी ख्वाहिशात को बिना कहे पूरा कर रहा है, और उसका एक अपना ऑफिस बनाने का ख्वाब पूरा हुआ था। आज यकीनन यह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था।